Hello everyone. Today I am with Sarthak Nautiyal. He is a buy-side equity research analyst at India Bridge. He is having asset under management of 400 crores. The future of equity research analyst. What is the relevance of equity research analyst in India? Lot of potential scope which is there in the Indian market कि अगर सब लोग इन्वेस्ट करने लग जाएं, big HNIs used to rather than buying land properties, they shifted their money to invest that money into equities markets, capital markets, bonds. अगर इन सब में इन्वेस्ट करने लग जाएं तो हमारे कितने ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन होंगे और कितना ज्यादा हमारे पास हमारे स्टॉक मार्केट में कॉर्पस आएगा, कितना ज्यादा फंड आएगा. That would really help us to grow this field. So आपने बताया आप इंडिया ब्रिज पे 400 crores का AUM कर रहे हो. Yes. So how are you managing that? What are your primary responsibility and what is your role at India Bridge? तो आपने बोला आप इंडस्ट्री को रीड करते हो, ट्रेंड्स को रीड करते हो. Yes. तो करंट मार्केट कंडीशंस के हिसाब से एज एन एनालिस्ट आप कौन से ट्रेंड पे या कौन सी इंडस्ट्री पे सबसे ज़्यादा बुलिश हो? जीएसटी कमिश्नर एट पीएमओ ही टोल्ड मी कि जो हमारा अगला 100 दिन का प्लान है, जो हमारा 100 डेज का प्लान आने वाला है, उसमें we have been planning to invest more on to focus more on infrastructure companies. लोग इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं, व्हाट स्किल्स डू यू थिंक कि उनके लिए नेसेसरी है और वो होनी चाहिए? आपने ये जो 4 स्किल बताए, वेयर दीज थिंग्स कैन बी लर्न फ्रॉम. सो मैं बन गया इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट मान लीजिए, तो मैं कौन से जॉब लेवल से स्टार्ट करूँगा और कहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ, एंड मेरे पैकेजेस का रेंज क्या रहेगा, कहाँ से स्टार्ट होता है एंड हाईएस्ट कहाँ तक जा सकता है? लास्ट क्वेश्चन सार्थक, एक्चुअली लास्ट सेकंड एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि एज एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एडवांस मैथ्स आना ज़रूरी है क्या? Hello everyone. Today I am with Sarthak Nautiyal. He is a buy-side equity research analyst at India Bridge. He is having asset under management of 400 crores. So hello Sarthak, how are you? Hello Prashant, it's been my pleasure coming at your show. I'm good. How about you? I am good as well. So let's start our discussion without any further ado. Sarthak, please tell us about yourself. For sure. So Prashant, I'm from Uttarakhand basically. I live in Delhi. I've completed my graduation from JCC Rohini College. उसके बाद I have got a work at Get Me Research. This is a boutique research firm where I was associated as a analyst to one of the biggest hedge fund of USA, Citadel. I was making financial model, doing valuation of different US companies, Chinese companies, and Russian companies. उसके बाद I have got an opportunity with this investment management fund called India Bridge Capital Management. So I am associated as a buy-side equity research analyst with this fund right now, and we are managing around 400 crores of AUM. So that's a brief intro about myself. Okay, that's a very interesting profile. So first I would like to ask you, how did you got into equity research? What sparked your interest? No, I'll tell you. So from the starting only, matlab, not from like my college life, from my school life, I've been watching my father doing investing, right? I've been seeing his money be compounding over time and time. So I'll tell you one example, good example. My father have bought Shri Cements, a company in 2000, 2005 maybe, at a price of somewhere around 400, maybe 600. And currently the share price is at 25,000. So I've been, so this is his biggest multi-bagger. So I've been seeing such stocks in his portfolio. I've been very passionate about all these things. तो उसके बाद I was reading like annual reports, con calls पढ़ रहा था, and it just मतलब मेरे को वो चीज किक दे रही थी कि how can someone like be this मतलब कई लोगों को we have seen that they have been like made a huge amount of corpus through stock market only. So I've been also learning about that, और वो spark मेरे अंदर था कहीं ना कहीं, and I always wanted to get into this field. That's why I've chosen equity research as my career option. That's a great story. So let's move ahead. I would like to ask you first question. For sure. What is the future of equity research analyst? What is the relevance of equity research analyst in India? For sure, Prasant. I have asked this question to my senior partners, my fund manager, and he have told me one thing
कि जस्ट इमेजिन, आप ही इमेजिन करो, अगर इफ इंडिया में अभी देर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर इन्वेस्टिंग, like 10 to 12% people, they have their demat account, right? Let's say actively investing people are only 2 to 3%. Now there are very few people who have been investing in the markets. So now आप खुद देखो, there is a lot of potential scope which is there in the Indian markets, कि अगर सब लोग invest करने लग जाएं, big HNIs used to rather than buying land properties, they shifted their money to invest that money into equities markets, capital markets, bonds. अगर इन सब में invest करने लग जाएं, तो हमारे कितने ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन होंगे और कितना ज्यादा हमारे पास हमारे स्टॉक मार्केट में कॉर्पस आएगा, कितना ज्यादा फंड आएगा. दैट वुड रियली हेल्प अस टू ग्रो दिस फील्ड, राइट? अब हर एवरीबडी कांट बी लाइक नो एवरीथिंग, राइट? लाइक हमें अगर इक्विटी रिसर्च के बारे में पता है, हमें कंपनी के एनालिसिस के बारे में पता है, तो शायद हमें ये नहीं पता कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, कोई हार्डवेयर कैसे बनता है, सॉफ्टवेयर कैसे फंक्शन करता है. सो एवरीवन इज नॉट दैट नॉलेजेबल, राइट? तो उनको, लेकिन स्टॉक मार्केट में दे आल्सो हैव टू इन्वेस्ट. So for them, we on the basis of them can invest, we can find good companies for them, and we can manage their fund, right? So that's how I see कि equity research का जो domain है ना इंडिया में, उसकी growth काफी अच्छे से हो सकती है. Yeah. ओके, सो आपने बताया आप इंडिया ब्रिज पे 400 करोड़ का AUM कर रहे हो. सो Yes. हाउ आर यू मैनेजिंग दैट? व्हाट आर योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट इज योर रोल एट इंडिया ब्रिज? So I am basically associated as a buy side equity research analyst at India Bridge. So I'll tell you, India Bridge mein we have been invested 400 crores. All that 400 crores has been invested in Indian small cap as well as micro cap companies, right? So we have been focusing more on investing in small cap companies so that we can generate that wealth, right? Uske baad, what I have been doing in this fund is that I have been finding few stocks which is important. Like I have been seeing कि government की क्या theme है, या क्या theme चल रही है इस समय, क्या theme based हो रहा है, and I find some stock, I do a proper analysis on that stock, whether that is corporate governance analysis, whether that is forensic analysis. I do all those analysis, and then I pitch that stock to my fund manager, and he takes the final decision whether our fund wanna invest in that company or not. Other than this, we also connect with the management of those companies. See, I'll tell you, for investing in any company, for example, we are purchasing 1 or 2% of that company. We have been paying 10 to 20 crores to that company, right? Now we need to know everything about the company. So for that purpose, we need to connect with the management anyhow. So before investing in any company, we used to connect with the management to understand the business more better, and to majorly understand how the business is going to look in future. So yeah, that's what my work is in at India Bridge Capital Management. This is how a usual profile of equity research analyst would look like. तो आपने बोला आप इंडस्ट्री को रीड करते हो, ट्रेंड्स को रीड करते हो. तो Yes, करंट मार्केट कंडीशंस के हिसाब से एज एन एनालिस्ट आप कौन से ट्रेंड पे या कौन सी इंडस्ट्री पे सबसे ज़्यादा बुलिश हो? I'll tell you. I'll tell you. So एक नॉर्मल सी आपको मैं बात बताता हूँ जो मेरे को ट्रेंड का पता चला. I've been doing some work in my car, to be honest, and I have found one person there. He's a GST commissioner at PMO. So उनकी एक मीटिंग थी उसी दिन. I have talked with him for like 5 minutes, but those 5 minutes were very valuable because he told me कि जो हमारा अगला 100 दिन का प्लान है, जो हमारा 100 डेज का प्लान आने वाला है, उसमें we have been planning to invest more on, to focus more on infrastructure companies. So what we personally think is कि जो भी EMC companies है, infrastructure companies है ना, they can really do well. अब infrastructure companies में सिर्फ ऐसी companies नहीं है जो properly like building बना रही है, घर बना रही है. There could be companies in जो road बना रही है, like there could be companies in cement sector जो cement में है. There could be companies in steel sector. There could be also companies जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है. आई आल्सो टेल यू वन मोर थीम जो इस समय काफी ज्यादा, मतलब आप देखोगे ना तो काफी रैली करेगी, वो है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड. अब इंडिया को क्लीन वाटर चाहिए ही चाहिए, राइट? एवरीबडी वांट क्लीन वाटर, राइट? और इंडिया में वाटर की इशू बहुत बड़ा है. वी हैव बीन सीइंग दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एवरीबडी वांट क्लीन वाटर. उसके लिए वाटर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं उनकी काफी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, राइट? ऑल्सो उसके बाद अगर मैं एक और थीम आपको बताऊं जो मतलब काफी हद तक दिख रही है कि इंडिया में ना वेस्ट मैनेजमेंट जो है ना, दैट इज वेरी पुअर राइट नाउ.
right? We need to manage our waste, and India generate a lot of waste. So out of that waste, what we can do is we can generate energy out of that waste. So there are few companies who do these things, or they take waste and they generate energy out of it. One of the example could be Antony Waste Management. That is a good company. I just want to make clear कि जो भी मैं इस podcast में stocks के नाम लूंगा, that are not stock recommendation. वो बस as a example आपको portray कर रहे हैं, ठीक है? सो एंटरी वेस्ट मैनेजमेंट कुड बी वन कंपनी जो इस सेक्टर में काम कर रही है, पर्टिकुलर वेस्ट टू एनर्जी के सेक्टर में. तो ऐसे कुछ फ्यू थीम्स है जो इस समय हम एनालिस्ट भी और काफी सारे जो हमारे एनालिस्ट मतलब ग्रुप में है वो दे आर लुकिंग एट. सो आपने तो ऐसे रिसर्च कर लिया, बट जो लोग इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं, व्हाट स्किल्स डू यू थिंक कि उनके लिए नेसेसरी है और वो होनी चाहिए? लेट्स मेक इट क्लियर. 4 पिलर हैं इक्विटी रिसर्च के. ओके. फर्स्ट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस. व्हाट डज दैट मीन? एक कंपनी को एक प्रमोटर चलाता है, राइट? एक जो भी उस बंदे कंपनी को चला रहा है. नाउ बिफोर एनालाइजिंग की कंपनी के क्या सेल्स हैं, क्या रेवेन्यू है, कितने प्रॉफिट दे रही है कंपनी, क्या मार्जिन है, यू नीड टू फर्स्ट नो कि जो कंपनी को चला रहा है क्या वो बंदा ईमानदार है, या क्या वो बंदा इज ही वेल क्वालिफाइड और एलिजिबल टू रन दैट बिजनेस और नॉट. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस इज रन बाय अ पर्सन जिसने डिजाइन में डिग्री कर रखी है, प्रोडक्ट में डिग्री कर रखी है, so like उस बिजनेस को चलाने के लिए ना you need to have some certain amount of knowledge, some certain amount of experience in that, right? So first of all you need to check the corporate governance, मतलब जो भी कंपनी का मैनेजमेंट है, हाउ दैट इज. ये पहली स्किल है जो आपको आनी चाहिए. दूसरी चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. 3 स्टेटमेंट होती है मेजरली: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो. यू मस्ट नो ईच एंड एवरी लाइन आइटम ऑफ दैट स्टेटमेंट्स, उनका क्या रेलेवेंस है, क्या मीनिंग है, और आप उनको कैसे एनालाइज कर सकते हो. जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल. अब आपको पता है अकाउंट रिसीवेबल क्या है? जो पैसा हमें मिलना है, दैट इज अंडर एसेट, राइट? यस. अब लोग बोलेंगे कि अगर अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है, हमारा एसेट बढ़ रहा है. और जो हमें अभी तक पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एसेट बढ़ता रहेगा तो अच्छा रहेगा, राइट? जितना एसेट बढ़ रहा है. लेकिन अगर आप टेक्निकली सोचो, कंपनी की सेल्स 20% ग्रो हुई है और कंपनी का अकाउंट रिसीवेबल 15% ग्रो हुआ है, तो मतलब जितनी भी सेल्स आई है कंपनी की वो तो रिसीवेबल में आ गई, अटक गई. इट माइट हैपन कि कुछ कुछ सालों के बाद, 3-4 सालों के बाद कंपनी का अकाउंट रिसीवेबल इतने ज्यादा हो जाए कि उनको और वो आ ही नहीं रहे हो, वो बेड डेप्ट शो कर दे उस चीज को, उसी दिन कंपनी का शेयर प्राइस इतना गिर जाएगा ना, मतलब वो इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा. तो आपको मतलब कंपनी को देखना है कि उसमें कैसे मैं रेड फ्लैग्स निकाल सकूं. थर्ड चीज है रेशियो एनालिसिस. आपको रेशियोज को पढ़ना आना चाहिए. रेशियोज एनालिसिस ये ऐसे नहीं, करंट रेशियो क्या होता है, करंट, अच्छा करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, एक से कम होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए, उतना अच्छा है. दिस इज नॉट रेशियो एनालिसिस, राइट? आपको एडवांस रेशियो एनालिसिस आना चाहिए कि अगर करंट एसेट इतने हैं तो इसके पीछे का रीजन क्या है, अगर करंट एसेट कम भी हैं तो इसके पीछे का रीजन क्या है, आरओसी क्या होता है, आरओई क्या होता है, इनका रेलेवेंस क्या है, राइट? सो जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, वो होगा हमारा रिपोर्ट मेकिंग स्किल्स. अब आपने एनालाइज कर ली सारी चीजें, आपको सारी चीजें पता चल गई, कंपनी क्या करती है, प्रमोटर क्या करता है, व्हाट आर द रेशियो सेइंग, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स इन द कंपनी. नाउ योर वर्क इज टू लाइक मेक अ रिपोर्ट आउट ऑफ दैट, राइट? आपको एक पीपीटी पे रिपोर्ट बनानी है, नॉट ऑन वर्ड, एक पीपीटी पे रिपोर्ट बनानी है. उस रिपोर्ट को आपको, अब वो रिपोर्ट होगी, पब्लिश होगी, वो लोगों के पास जाएगी, लोग देखेंगे, उसके बेसिस पे लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं कि वेदर वी वांट टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी और नॉट. तो रिपोर्ट काफी मेन होगी. उसमें आपको ना एक रिकमेंडेशन देनी है, वेदर यू यू आर गिविंग इट अ बाय रिकमेंडेशन और सेल रिकमेंडेशन टू दिस स्टॉक, राइट? तो आपको वो स्किल होनी चाहिए कि हाउ टू मेक अ रिपोर्ट, और वो जो डेटा आपने निकाला है उसको इंटरप्ट कैसे करना है, और उसमें से एक लॉजिकल मतलब आपको कैसे एक वर्डिंग निकालनी है, एक कंक्लूजन निकालना है, जिससे कि एक नॉर्मल बंदा है ना, वो इफ ही इज रीडिंग अ कंपनी, वो पूरा एनुअल रिपोर्ट ना पढ़े, पूरी कॉन कॉल्स ना पढ़े, पूरे स्टेटमेंट ना देखे, वो सिर्फ आपकी रिपोर्ट पढ़े. So these are the 4 things which are majorly required if you want to enter in a career of equity research analyst. Yeah. ओके. सो आपने ये जो 4 स्किल बताए, वेयर दीज थिंग्स कैन बी लर्न फ्रॉम? कुछ ऐसे अफोर्डेबल कोर्सेज, कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस जो आप बताना चाहोगे फॉर बिकमिंग एन ईआरए? I'll tell you. So, to be honest, इक्विटी रिसर्च ऐसा आपको मैं बताऊं फील्ड है ना कि
लोगों को सर्टिफिकेशन से मैटर नहीं करता, पहली चीज, दे डोंट वांट अ सर्टिफिकेट। अगर आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट ला के दे दोगे उनको, दे वोंट दे वोंट से कि आप आ जाओ हमारे साथ काम कर लो। दे वांट यू टू हैव अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्किल्स, राइट। सो मतलब एक एडवाइस अगर मैं आपको दूं स्टार्टिंग में, कि व्हाट यू गाइस कैन डू इज, यू गाइस कैन रीड एनुअल रिपोर्ट्स। अगर अपनी लाइफ की एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हो ना, जिंदगी की पहली एनुअल रिपोर्ट, तो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन एंड एंड एट द लास्ट वर्ड। पूरी वो 300 पेज हो, 400 पेज हो, जो भी हो, वो एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, पूरी एनुअल रिपोर्ट पढ़ो। और एल्स व्हाट यू कैन डू इज, हर महीने एक सेक्टर पकड़ो और हर हफ्ते की एक कंपनी पकड़ो उस सेम सेक्टर की। नाउ बाय द टाइम यू विल बी एंडिंग विद, आपका एक साल जैसे ही कंप्लीट होगा ना, यू विल बी एंडिंग विद 12 सेक्टर आपने कवर कर लिए होंगे, और आपने 48 कंपनीज कवर कर ली होंगी उन 12 सेक्टर्स की। अगर आप इतना करते हो ना अपने कॉलेज टाइम में, अगर आप कर रहे हो ये चीज, अगर आपका खाली टाइम है, आप किसी और जॉब में हो लेकिन आपको सीखना है, आप ये कर रहे हो ना, तो आपको मेजरली कोई कोर्स की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको फिर भी थोड़ा हैंड होल्डिंग चाहिए या थोड़ा इजीली चीजों को समझना है, तो देयर आर फ्यू कोर्स अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, particularly I'm saying about equity research. First of all, even I teach myself, मतलब जो मैं पढ़ाता हूँ, that is completely one-on-one course. uh, that is of financial modeling and financial modeling, valuation and equity research course, which include all the three skills, right? उसके बाद there are more institutions like the valuation school, Parth Verma, that is a great institution who teach equity research. उसके बाद there are institution who teach financial modeling majorly, that those are Wall Street could be one institution, then there is IB Institute, uh, then there is CFI. But the thing is, as a student, you will be facing like their courses are on a expensive side. I will tell you, they are above 30-40K. So if you wanna learn this thing affordably, you can watch YouTube videos. There's everything in the YouTube which is available for free, to be honest. And you can focus more on reading by yourself. Yeah, that's a Any suggestion. specific YouTube channel that you would like to suggest to the I audience? would say, start watching more and more YouTubers, finance YouTubers, who could be like SOIC is one YouTuber, Okay. who, right? Harsh Goyla is one YouTuber. Akshay Srivastav, also a YouTuber which is doing very good. Uske baad Rachna Rane, you must have heard about. She Hmm. is like doing good things. So there are like many YouTube channels जो आपको देखने चाहिए on a regular basis. चाहे if you have become a equity research analyst, उसके बाद भी you should watch all these videos. Reason being, क्या पता आपको वीडियो देख के कोई स्टॉक आइडिया मिल जाए, राइट। सो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड सम स्टॉक। कुछ भी करो ना, एक स्टॉक ढूंढने की कोशिश करो कि मतलब कैसे मिल सकता है कोई स्टॉक मुझे, राइट। सो दिस शुड बी लाइक आपके मन में होना चाहिए। और एनालिसिस कर रहे हो ना, एक चीज, अगर एनालिसिस कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग अ एनालिसिस एनी कंपनी, मेक श्योर आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आए। अगर कंपनी के मार्जिन बढ़ रहे हैं, अच्छा अगला क्वेश्चन क्यों आना चाहिए कि क्यों बढ़ रहे हैं। अच्छा इसलिए बढ़ रहे हैं, इसलिए क्या इसके कॉम्पिटिटर्स के भी बढ़ रहे हैं, अच्छा उनके भी बढ़ रहे हैं, तो ये तो मतलब इंडस्ट्री के बढ़ रहे हैं पूरे। तो मतलब ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कंपनी को बहुत बड़ा मूव मिल रहा हो। अच्छा अगर सिर्फ कंपनी के ही बढ़ रहे हैं तो उसका क्या रीजन है, मतलब आपको एक क्वेश्चन एंड पे दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए। तो दैट्स हाउ यू कैन प्रोसीड, आई गेस। ओके। सो मैं बन गया इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट मान लीजिए, तो मैं हम्म। कौन से जॉब लेवल से स्टार्ट करूंगा और कहाँ तक मैं पहुंच सकता हूँ, एंड मेरे पैकेजेस का रेंज क्या रहेगा, कहाँ से स्टार्ट होता है एंड हाईएस्ट कहाँ तक जा सकता है? आई विल टेल यू। सो इक्विटी रिसर्च में ना, देर आर लाइक पैकेजेस ना कभी भी फिक्स नहीं होते, राइट। इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस सिटी में रह रहे हो, whether you are on a tier 1 सिटी, tier 2 सिटी, tier 3 सिटी आप काम कर रहे हो। और इट डिपेंड्स ऑन आप कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। यू माइट बी स्टार्टिंग विद ग्रेजुएशन, somebody might be starting with पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट। सो ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता, लेकिन फिर भी एक बॉलराउंड फिगर अगर देना ही है तो आई विल टेल यू। सो यू विल बी स्टार्टिंग योर करियर विद इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। सो आप एज ए एनालिस्ट स्टार्ट करोगे, which where you can expect somewhere around like 4 to 5 LPA। अगेन ये कुछ फिक्स नहीं है, आपको इससे ज्यादा भी मिल सकता है, आपको 3 to 4 lakhs भी मिल सकता है। क्या पता आप अपना करियर स्टार्ट करो 6 to 7 lakhs पे, कुछ लोग करते हैं 10 lakhs पे। इट डिपेंड्स कि आप किस सिटी में फंक्शन कर रहे हो, राइट। उसके बाद यू विल बी मूविंग अहेड इन योर करियर, लाइक डाउन द लाइन 2 years के बाद यू विल बी इक्विटी रिसर्च एसोसिएट। नाउ you'll have 2 or 3, maybe 4 equity research analysts under you,
Now you can expect somewhere around 8 to 10 LPA. उसके बाद you will be moving, आप एक टीम मैनेजर बन जाओगे, एक टीम लीड होगे. So you will be managing more of like, now you will be managing more of equity research associate. So you would have a team of associate who are managing analyst, right? Now there you can expect somewhere around 15 to 20 LPA. आप इक्विटी रिसर्च में क्या होता है ना कि आपका फिक्स पार्ट कम होते रहता है जैसे ज्यादा आप सीनियर लेवल पे जाते रहते हो. अच्छा. लेकिन आपका जो बोनस है वो उसका अमाउंट बढ़ते रहता है. एंड बोनस कैन बी एज हाई एज योर सैलरी. मतलब इट कैन बी इवन एक्सीड योर फिक्स पार्ट समटाइम्स. अगर आपका काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपका फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपने अच्छे स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको बोनस मिलेगा काफी अच्छा, आपको कमीशंस मिलेंगी, राइट? अब इसके बाद यू विल गो टू अ लेवल ऑफ लाइक फंड मैनेजर, आप पोर्टफोलियो मैनेजर बनोगे. इसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर 25 to 30 LPA. उसके बाद यू विल बी फंड मैनेजर. उसके बाद यू विल बी अ हेड ऑफ फाइनेंस, राइट? इन एनी फंड यू कैन बी अ हेड ऑफ फाइनेंस. एंड द अल्टीमेट एम इज कि आप किसी फंड के वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बन सकते हो, where you will be earning somewhere around 1.5 to 2 crores, which उसमें मेजोरिटी पार्ट आपके बोनस का होगा, राइट? इट वुड डिपेंड कि आप क्या मतलब आप सो फ्रॉम अ एनालिस्ट टू अ प्रेसिडेंट की जर्नी में इट माइट टेक यू 10 to 12 years, मे 14 years. बट ये है कि यू विल बी अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, अ गुड अमाउंट ऑफ, यू विल बी गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ बोनस कमीशन, अगर आपने अच्छे स्टॉक रिकमेंड किए हैं, अगर आपने अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रखा है तो. सो Okay. दैट्स हाउ इट लुक लाइक. It was a good insight. Last question, सार्थक. एक्चुअली लास्ट सेकंड एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि एज एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एडवांस मैथ्स आना ज़रूरी है क्या? I'll tell you, I'll tell you. So I'll tell you particularly about myself कि मेरी ना 11th और 12th में मैं मैथ्स नहीं थी, मतलब मेरी ओके. मैथ्स ही नहीं थी. अ, मेरे को ऐसे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट में ना आपको ये नहीं जानना है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस शेयर का क्या, आपको इतने कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंडे नहीं है मैथ्स के. देयर आर सिंपल थिंग्स जो आप एक्सेल में कर पाओगे कि सब अच्छा ये सारे सेल्स हैं, इसकी ग्रोथ कैसे निकालनी है, मतलब पिछले साल से करंट ईयर की कितनी ग्रोथ हुई है, उसका एक चीज होगी. आपको ना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए नंबर्स की थोड़ी बहुत, और आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंसेप्ट की कि ये क्यों हो रहा है. मेजरली काम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बस इसमें रहता है. आपको एडवांस मैथ्स के कोई कंसेप्ट इक्विटी रिसर्च में तो काम नहीं आता है. सो ये तो एक, अगर लोग मतलब कई लोगों को ऐसा फील होता है कि मैंने मैथ्स नहीं ली कॉमर्स में अपने, विल आई बी एबल टू ज्वाइन फाइनेंस इंडस्ट्री और नॉट. तो फाइनेंस इंडस्ट्री में आपको यार एडवांस मैथ्स नहीं चाहिए, आपको कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी चाहिए. लेकिन मतलब आपको बेस जो होता है ना, आपको पता होना चाहिए हर चीज की, अच्छा इस लाइन आइटम का क्या मतलब है, इसका क्या रिलेवेंस है, इसको मैं चेंज करूंगा तो किधर किधर इफेक्ट आ सकता है. तो वो क्लैरिटी और वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए. सो या आई डोंट थिंक मैथ्स इज रिक्वायर्ड. टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इम्पोर्टेंट. या यस. ओके. सो फाइनली लास्ट क्वेश्चन. इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का फील्ड आपने इंडिया में बोला कि इसका रेलेवेंस बढ़ते जा रहा है, तो कमिंग टू 5 to 10 years from now, what do you think is the scope of equity research analyst in India? Because why am I asking this question again? Because अब AI धीरे धीरे आ रहा है, तो what do you think कि जॉब छीन लेगा इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की या उसका स्कोप बढ़ाएगा? सी आई विल टेल यू द थिंग. आज से 10 साल पहले भाई, सो फ्रॉम लास्ट, अगर हम देखें 10 साल पहले हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं थे जो डेटा पुल नहीं कर पाते थे. तो हम डेटा पुल कैसे करते थे 10 साल 20 साल पहले? खुद से एनुअल रिपोर्ट्स में जाके देखा नंबर, उसको लिख दिया, नंबर देखा लिख दिया. अब एआई की हेल्प से क्या हो गया है कि भाई ये जो मैनुअल काम है ना, जिसमें मतलब दिमाग नहीं लगेगा, कि सिर्फ डेटा पुल करना है, दैट इज डन बाय एआई. लाइक देयर इज एप्लीकेशन कॉल्ड फैक्टसेट हो गया, देयर इज ब्लूमबर्ग, देयर इज कैपिटल आईक्यू, जिसमें एक क्लिक में यू गॉट ऑल द डेटा टुगेदर. So it is a great help for people, right? So it is a like very repetitive work और very boring work कि एक एक नंबर लेके डालना. तो कहीं ना कहीं AI have helped us अभी. और यार I personally think nobody can remove human interference in anything, right? Cockroaches and humans are meant to survive together, right? And we human are very much like ultimate survivor, right? मेजरली क्या है ना कि भाई इक्विटी रिसर्च में आर मेन वर्क इज टू आइडेंटिफाई रेड फ्लैग्स इन एनी कंपनी, कि भाई कमियां निकालनी है.
एआई ना और एनुअल रिपोर्ट्स या कॉन कॉल्स होती है ना, दे आर डिजाइन ऐसे डिजाइंड होती हैं कि यू वोंट बी एबल टू फाइंड एनी रेड फ्लैग। लाइक यू विल बी थिंकिंग कि कंपनी बहुत ही अच्छा, अगर कुछ कंपनी बहुत गलत भी कर रही है ना, तो भी उसको ऐसे कुछ प्रेजेंट करेगी वो कि विल बी लाइक कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, आई शुड इन्वेस्ट। और आगे जाके कोई फ्रॉड निकल जाएगा तो आपके पैसे तो गए, क्योंकि आपको अगर कोई कंपनी में फ्रॉड निकल गया ना, तो किसी को बेचने का टाइम भी नहीं मिलता, वो उसका शेयर प्राइस इतनी जल्दी करता है, बिकॉज उस टाइम पे कोई बायर नहीं होते, कोई भी नहीं बायर नहीं होते, तो आप बेच नहीं पाते हो, राइट। तो मतलब ये है कि एआई कभी भी किसी कंपनी में रेड फ्लैग निकालना इस टाइम पे तो कोई पॉसिबल नहीं है कि किसी कंपनी में निकाल के ये बता दे कि ये कंपनी गलत कर रही है। वर्डिंग जो लिखी हुई होंगी, वो वर्डिंग ऐसी कुछ वर्डिंग लिखी होंगी जो एक ऑडिटर ने लिखी है, और एक बंदा ही उसको समझ पाएगा कि इसने अच्छा ये ऐसे घुमा के लिखा हुआ है, राइट। और फाइनेंस इज अ फील्ड जहाँ पे मनी बहुत रिलेटेड होती है, एंड एवरीबडी इज लाइक वेरी पोजेसिव अबाउट देयर मनी, राइट। तो दे वोंट ट्रस्ट मतलब एआई पे कि वो उनकी मनी मैनेज करे। दे वोंट ट्रस्ट ऐसे स्टॉक पे जो एआई ने रिकमेंड किया है कि, और वो उस पर अपने 1 करोड़ 2 करोड़ डाल दें, अगर वो गिर गया तो किसको ब्लेम करेंगे? नाउ दे डोंट हैव एनीवन टू ब्लेम, राइट। यस। इसलिए ह्यूमन इंटरफेरेंस या वो कभी इक्विटी रिसर्च की फील्ड में नहीं जा सकता है, और इक्विटी रिसर्च की फील्ड है जो ग्रो ही करेगी नेक्स्ट फ्यू इयर्स में। एआई डेफिनेटली विल हेल्प अस डेटा रिट्रीव करने के पार्ट में, मे बी ऑटोमेशन ला पाएगा वो कुछ, लेकिन एट लास्ट एनालिसिस करने का काम वुड बी डन बाय ह्यूमंस ओनली। Okay. या Nice answer. So here we come at the end of this podcast. Thank you, Sarthak, for joining us. I think it was a very beneficial podcast because मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला about the ERA field, and I think audience को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. Thanks a lot for joining. थैंक यू प्रशांत, इट्स माय प्लेजर बीइंग ऑन योर शो एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। Thank you. Goodbye. बाय बाय, टेक केयर।